Hello, good morning, student. So, today we are going to discuss chapter 19. The chapter name is Consumers Awareness. First of all, I want to tell you about the consumer awareness. What is this? See, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं, राइट, आप आपको उस प्रोडक्ट के बारे में जानना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये चीज़ें क्या होती है, कई बार जो प्रोडक्ट लॉन्च किया जाता है, जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट टीवी पे आता है तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में बताता है। लाइक वो कंज्यूमर को अवेयर करता है कि उनके प्रोडक्ट में क्या क्या स्पेशलिटी है, ताकि कोई डुप्लीकेट प्रोडक्ट जो है वो आप ख़रीद ना सकें। ख़रीदते वक्त आपको इन सारी चीज़ों का ध्यान रखना होता है। प्लस कंज्यूमर अवेयरनेस ये भी है कि आपको अपनी कंज्यूमर राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। मतलब अगर कोई चीज़ आपको गलत बेची जा रही है या गलत है, तो उसके अगेंस्ट आप किस तरह से केस फाइल कर सकते हैं, किस तरह से आप उसका प्रोटेस्ट कर सकते हैं, अपोज जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें जो है कंज्यूमर अवेयरनेस के अंदर आती हैं। तो नाउ चलिए देखते हैं हम इस चैप्टर में क्या है। Consumer and the producers are complementary to each other. One produces goods, sells them, and the other utilizes them from after buying. A person may or may not be a producer, but every individual is a consumer. As soon as the person buys the final products and the services to satisfy his or her needs, at that moment his or sharing starts in the market. Thus, a consumer is a person who buys commodities from the market. In this age of capitalism and the globalization, the main objective of each producer is to maximize profit. In each and every possible way, the producers are trying to increase the sale of their products. Therefore, in fulfillment of their aim, they at times forget the side of consumers and start exploiting them. For example, overcharging, underwaiving, selling and the adulterated and the poor quality goods, misleading the consumer by giving a false advertisement, not providing a proper after sale services. Thus, in order to save himself from being cheated, it's necessary for a consumer to be aware. Thus, consumer awareness means creating awareness of consumer towards his right and the duties. चलिए, अब इसमें जो बताया गया वो ये है कि जब भी कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाई जाती है, ठीक है, हर एक पर्सन जो है वो प्रोड्यूसर नहीं हो सकता, लेकिन वो हर एक पर्सन, एक इंडिविजुअल पर्सन क्या है, कंज्यूमर है। फाइन, कोई भी कंज्यूमर किसी चीज़ को कब यूज़ करता है, फाइनली उसे ख़रीदने के बाद वो उस चीज़ को यूज़ करना शुरू करता है, लाइक फाइनली उसका यूटिलाइजेशन करता है। तो ये जो है उनकी नीड्स के अकॉर्डिंग होता है, जो कि वो मार्केट से जाके डायरेक्टली ख़रीद लेते हैं ना। सही, अब कोई प्रोडक्ट जब वो ख़रीदा जा रहा है तो वो प्रोडक्ट सच में कितना अच्छा है, क्या वो उसके लिए सही है या नहीं, ये सारी चीज़ें कैसे पता चलती है। ये इस तरह से पता चलती है कि जब कोई एडवर्टाइजमेंट दिखाया जा रहा है तो जितनी क्वालिटीज़ और जिस तरह का मटेरियल बताया जा रहा है, तो जब आप ख़रीदने जा रहे हैं क्या वो वैसा है या नहीं। अगर नहीं है तो वो फॉल्स एडवर्टाइजमेंट क्यों आपको दिखाई गई। तो इस तरह से आप कब इसका प्रोटेस्ट कर पाओगे, जब आपको अपने राइट्स पता होंगे, आपकी ड्यूटीज़ पता होंगी। तो कंज्यूमर अवेयरनेस कहीं ना कहीं इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम देखते हैं आगे। नीड फॉर कंज्यूमर अवेयरनेस। It has been observed very often that a consumer does not get a right goods and service. He has been charged a very high price, or adulterated or low quality goods are sold to him. Therefore, it is necessary to make him aware. Following facts classify the need of making consumer aware. To achieve maximum satisfaction, the income of every individual is limited. He wants to get a maximum satisfaction from the goods and services. With his income, he gets full satisfaction only by good behavior of trader producer. Therefore, it is necessary that he should get the goods which are measured appropriately, and he should not be cheated in any way. For this, he should be made aware. अब देखिए, अब ये जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है किसी भी कस्टमर के लिए कि वो मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन ले विद द गुड्स और द प्रोडक्ट और फ्रॉम द ट्रेडर। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। तो ये कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा अप्रोप्रिएट है। तो जो भी चीज़ें, जो इनकम पा रहा है कौन, प्रोड्यूसर, वो किस बेसिस पे पा रहा है, कस्टमर के सेटिस्फैक्शन पे पा रहा है। और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि हर चीज़ को प्रॉपर्ली मेजर किया जाए ताकि कस्टमर चीटेड ना हो, राइट। तो ये जो चीज़ है कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। Now here we'll see the next point. The protection against exploitation of a producer. Producer and sellers exploit the consumers in many ways.
as underwaiving, taking more price than a market price, selling duplicate goods, etc. Big companies through their advertisement also mislead the consumers. Consumer awareness shields from their exploitation of a producer. And अब देखिए होता क्या है, मैं कई सारे पॉइंट्स जो है मैं आपको पहले एक मॉक में बता देती हूँ, फिर उसके बाद मैं इसे रीड करती हूँ, आप समझने की कोशिश करिएगा। देखिए आपके साथ कई बार क्या होता है, टीवी में आप एडवर्टाइजमेंट देखते हैं, राइट। सपोज़ आप किसी ब्रांडेड चीज़ को देखते हैं, आप सोचते हैं कि हाँ ये ब्रांडेड चीज़ इस तरह की क्वालिटी दिखा रहा है, ये काफ़ी अच्छा है, हम इसे खरीद सकते हैं। लेकिन कई बार क्या होता है, प्रोड्यूसर चीट करते हैं, प्रोड्यूसर भी चीट करते हैं, और कई बार क्या होता है मार्केट में उसकी कई सारी कॉपीज़ आ जाती है, तो आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं कि ओरिजिनल क्या है और फेक क्या है। तो इस चक्कर में क्या होता है, हम कहीं ना कहीं गलत चीज़ को ख़रीद लेते हैं। तो चलिए अब देखते हैं अब यहाँ पे आगे क्या क्या पॉइंट्स हैं। आई एम गोना रीड दिस, अगर आपको समझ में आ जाता है तो ठीक है, एल्स इफ़ यू हैव एनी डाउट रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी एनी टाइम। There are several such control over consumption of harmful goods. There are several such goods available in market which cause harm to the consumer. For example, we can take goods like a cigarette, tobacco, liquor, etc. The consumer education and awareness motivate people not to purchase such goods, which is not beneficial for them. Motivation for saving. The awareness control people from a wastage of money and extravagancy and inspires them to take right decision. Such consumers articles which are really of good quality and not merely attractive should be bought and not get attracted by advertisement of concession, free gifts, attractive packing, etc. Thus people can use their income in a right way and can save more. Knowledge regarding solution to problems. The consumer class is cheated due to the illiteracy, innocence and lack of information. Therefore, it becomes necessary that the information about their rights should be provided to them so they cannot be cheated by producers and sellers. Through the consumer awareness, they are also made known to the proceedings of laws so that they can solve their problems. Construction of healthy society. Every member of the society is a consumer. So if the consumer is aware and the rational, then complete society becomes healthy and alert towards their right. In such a situation, it is not possible for producer and seller to cheat or deceive them. अब देखिए यहाँ पे सारे पॉइंट्स बताए गए, इट्स एन वेरी ईजी थिंग एंड आई हैव टोल्ड यू ऑलरेडी. So just read it out once, and if you have any doubt you can ask me. Now we'll see the next point here. Types of consumer exploitation. Today a consumer faces the difficulty in selecting the right commodity due to the expansion of commercial activity and the availability of varieties of goods and services in the economy. The companies give attractive advertisement and the information to attract consumer, but many times it is not proper and complete. Therefore, the consumer are cheated and exploited. Generally, the consumers are exploited in the following ways. High prices. अब देखिए यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि फाइनली कंज्यूमर को किस तरह से लूटा जा रहा है, मतलब किस तरह से उनका गलत इस्तेमाल किया जा रहा है। मतलब आप समझ सकते हैं किसी कस्टमर को अगर किसी चीज़ के बारे में प्रॉपरली नहीं है इन्फॉर्मेशन, तो आपने देखा होगा कई बार आप जब मार्केट में गए होंगे तो आपने देखा होगा अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है कि वो चीज़ कितने की होनी चाहिए या उसको किस तरह से ख़रीदना है, तो कई बार क्या होता है जो भी सेलर होता है वो आपसे एक्स्ट्रा पैसे वसूल कर लेता है, और आपको कुछ समय बाद जब आप मार्केट से बाहर निकलते हैं, लोग आपका प्रोडक्ट जो आपने ख़रीदा है वो देखते हैं, तो वो आपको बताते हैं कि इस चीज़ के इतने पैसे नहीं देने चाहिए थे या आपने ज़्यादा पे कर दिए, राइट। तो ये चीज़ जब होती है तब आपको एहसास होता है कि हमने कुछ ज़्यादा अमाउंट पे कर दिया। तो इस तरह का जो है ये एक्सप्लॉयटेशन होता है। अब चलिए हम देखते हैं हाई प्राइजेस. Generally, the shopkeepers take more prices than the fixed retail price according to their own wish. You might also have experienced that we buy a costly commodity from a shop and the same goods are available at less price in the another shop. If we show him the printed price, then he gives us some excuse such as a local taxes etc. अब आपने देखा होगा ये आई थिंक सबसे ज़्यादा हुआ है जब भी आप कोई कोल्ड ड्रिंक या सारी चीज़ें खरीदने जाते होंगे. यहाँ पे आपने एक चीज़ नोटिस की होगी, जब वो आपको चिल्ड करके देते हैं तो वो क्या कहते हैं, वो जो MRP प्राइस है उससे 2 रुपये ज़्यादा महंगा बेचेंगे या 3 रुपये ज़्यादा महंगे बेचेंगे या 5 रुपये ज़्यादा. उनके पीछे जब आप उनको रीज़न पूछेंगे कि आप इतना महंगा क्यों बेच रहे हैं, तो आपको क्या कहेंगे, हमने इसे कूल किया है, कूलिंग सिस्टम हमारा यूज़ हुआ है इसलिए 5 रुपये एक्स्ट्रा हमने बढ़ाए हैं. मतलब दे विल ऑलवेज गिव यू द सम एक्सक्यूज़ टू जस्टिफाई द high price. Now see the inferior quality. Sometimes the purchased goods are of inferior quality. For example, medicine sold after its expiry date. Sometimes electronic devices either burn itself or the consumer are harmed by the current. In this way the consumer is cheated and exploited. अब समझ लीजिए कई बार क्या होता है,
आप मेडिसिन खरीदने जाते हैं, आपको एक्सपायर मेडिसिन दे दी जाती है, राइट। इससे आपको हार्म होता है। कई बार आप कोई अप्लायंस खरीदने जाएंगे, आपको बहुत हाई प्राइस में अप्लायंस बेच दिया गया, बट उसकी क्वालिटी बहुत ख़राब होती है। यानी एक बार जैसे ही आपने उस अप्लायंस को यूज़ किया, या तो इलेक्ट्रिकल शॉक मिलेगा या तो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा उसमें। तो इस तरह की जो चीज़ें होती हैं, इट विल कम अंडर द इन्फीरियर क्वालिटी। Now we'll see the adulteration and impurity. Adulteration means the mixing of some cheaper material in a quality commodity. This causes a harm to the health of consumers. White stone chip mixed with the rice, color in spices, khesri and tur pulses, mixing of harmful substance in other costly items such as ghee, oil, etc. so as to earn the more profit. समटाइम्स फिजिकल डिसेबिलिटी ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ अडल्ट्रेटेड फूड। अब देखिए क्या होता है, कई सारे फूड्स जो हैं उसमें अडल्ट्रेशन किया जाता है और इम्प्योरिटी को ऐड किया जाता है। इस वजह से कई सारी प्रॉब्लम जो है किसी कस्टमर को झेलनी पड़ती है, क्योंकि आप इसका अगर कंजम्पशन करते हैं तो कई तरह की प्रॉब्लम आपकी बॉडी में बन जाती है, तो कई तरह की डिसेबिलिटी भी आ जाती है। False or incomplete information. Many times producers and sellers provide a wrong and incomplete information to the customers. Due to this, the customers are trapped by purchasing a wrong items and their money get wasted. The correct and कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द गुड्स इज़ नॉट गिवन टू द कंज्यूमर रीडिंग द प्राइसेस। अब देखिए यहाँ पे जो पॉइंट्स यहाँ पे बताए गए हैं, ये सारी चीज़ें आई थिंक आप रीड करके भी समझ सकते हैं। तो इसमें कुछ बहुत ज़्यादा चीज़ नहीं है। रॉन्ग मेजरमेंट, आफ्टर सेल सर्विसेज, मिस बिहेवियर एंड अननेसेसरी कंडीशन। आपने देखा होगा ये सारी चीज़ें जब आप किसी शॉप में जाते हैं, अगर कोई शॉपकीपर आपके साथ मिसबिहेव करता है, यानी अगर आपको कोई चीज़ पसंद नहीं आई, आपने उसकी खामियाँ बता दी, तो वो आपको वो आपके साथ मिसबिहेव करना शुरू कर देता है। तो ये सारी चीज़ें आपने देखी है, महसूस भी की होगी। तो आप इसे एक बार रीड कर लीजिएगा, आप इसे समझ सकते हैं। नाउ विल सी द नेक्स्ट पॉइंट, कॉजेज़ ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अब देखिए कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन होने के कॉजेज़ क्या है, मतलब किस वजह से जो है ये एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। तो लैक ऑफ नॉलेज, मैंने आपको बताया था, अगर आपको किसी चीज़ का ज्ञान नहीं है, अगर आप किसी चीज़ के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन आपके पास नहीं है, और अगर आप वो चीज़ खरीदने जा रहे हैं, तो बेचने वाला आपको कई सारी अच्छी बेस्ट क्वालिटी बता के बेच तो देगा, लेकिन आप क्या उस क्वालिटी को जज कर पाएंगे? क्योंकि आप एक्सपीरियंस नहीं है, आपको पता नहीं है कि वो चीज़ क्या है। आपके लिए जो बताई जा रही है फ़िलहाल के लिए वही चीज़ सही होती है। तो लैक ऑफ नॉलेज जो है ये बहुत बड़ा रीज़न है इसका। देन लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, अगर आपके पास बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन, सपोज़ मान लीजिए मैं मार्केट में घी खरीदने गई, मैंने ओरिजिनल घी तो कभी खाया नहीं है, तो मैं क्या करूँगी, मुझे किसी ने बताया, मैं सपोज़ अभी मैं बहुत छोटी हूँ या मैं बहुत बड़ी भी हो गई, पर ये फर्स्ट टाइम है जो मैं ख़रीदने जा रही हूँ। तो अब क्या होगा, सपोज़ किसी ने मुझे कहा है कि आप घी खरीद के ले आइए, और घी के बारे में मुझे थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन दे दिया गया कि जो आप घी खरीदेंगी तो उसमें इस तरह की स्मेल आएगी और कुछ इस तरह का उसका टेक्स्चर होगा। अगर इस तरह का टेक्स्चर आप देखते हैं तो सही घी आपको मिल जाएगा। मैं मार्केट में भी खरीदने गई, क्योंकि मेरे पास बहुत लिमिटेड इन्फॉर्मेशन है, मैंने उस चीज़ को यूज़ तो किया नहीं है, मुझे किसी ने एक्सप्लेन किया कि आपको ये 2 क्वालिटी अगर देखने को मिलती है तो कई हद तक ये सही रहेगा। तो मैं गई और इसी लिमिटेड इन्फॉर्मेशन के अंडर मैं जाके उस चीज़ को खरीद ली। तो कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, मुझे एक तो खुद मेरे पास शॉर्टेज ऑफ इन्फॉर्मेशन है, बहुत ही लिमिटेड चीज़ें मुझे पता थी, मैंने ख़रीद तो ली, क्या पता उस चीज़ को फेक करके ही उसने बेची। पर लेने के बाद मुझे, खाने के बाद जब मुझे एहसास हुआ कि हाँ ये वो क्वालिटी नहीं है जिसके बारे में बात की जा रही थी। तो दिस इज़ रिगार्डिंग द लिमिटेड इन्फॉर्मेशन। अब मोनोपोली की अगर बात की जाए तो देखिए कस्टमर्स की मोनोपोली क्या होती है, किस तरह से आपको गुड्स को बेचना है, ये जो है प्रोड्यूसर या शॉपकीपर बहुत अच्छे से जानता है। आपने देखा होगा कई बार जब आप किसी शॉप में कुछ खरीदने जाते हैं तो बहुत आपको स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, आइए बैठिए, हम आपके लिए जूस लाते हैं, कॉफ़ी मंगवा दें या चाय मंगवा दें। तो बेसिकली क्या किया जा रहा है, आपको बहुत अट्रैक्ट किया जा रहा है। आपको अच्छी कोई ख़राब चीज़ भी अगर उसको आपको बेचनी है तो बहुत अच्छे से अगर आपको ट्रीट करे और कुछ अच्छी क्वालिटी उस प्रोडक्ट के बारे में बता दे, तो क्या होगा, आप उसे ख़रीदने के लिए तैयार हो जाएंगे। नाउ द कंज्यूमर इंडिफरेंस टुवर्ड्स द मार्केट। अब देखिए कई सारे इस चीज़ के हैं कि कई सारे डिफरेंस जो है वो आपको देखने को मिलेंगे। हमें बोला जाता है कि जैसे आप जो सोना खरीदने जा रहे हैं तो मेक श्योर दैट इट शुड हैविंग अ हॉल मार्क, एंड अगर आपको इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस खरीदने जा रहे हैं तो इट शुड बी देयर बी ISI मार्क। तो ये सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं इंडिफरेंस भी क्रिएट कर रही है, कहीं फेक तौर पे सिर्फ लगा दी जा रही है, कहीं पे सच में है। तो इस तरह से क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं डिफरेंस जो है मार्केट में आपको देखने को मिलेगा। अब टेली मार्केटिंग की बात की जाए तो आपने कई बार देखा होगा टीवी में कई सारे एड्स आते हैं, ठीक है। उस एड्स में कई सारे फ़ोन नंबर्स दिए रहते हैं, अगर आपको कोई चीज़ पसंद आई है तो आप कॉल करिए और अपना ऑर्डर बुक करिए। तो इस तरह से किसी प्रोडक्ट की जो मार्केटिंग की जाती है दैट वी कॉल टेली मार्केटिंग।
नाउ विल सी द अट्रैक्टिंग एंड मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट। देखिए इसके लिए बहुत बेस्ट एग्जांपल है, आपने देखा होगा टीवी में कई सारी एड्स आती हैं कि आप 15 दिन ये गोलियां खाइए या 20 दिन ये वाली मशीन को ट्राई करिए तो आपका मोटापा घट जाएगा। बेसिकली क्या कर रहा है वो, कस्टमर का माइंडसेट जानता है। जो मोटे हैं उनके अंदर क्या है, बहुत सारी ये जो है एक हीन भावना है कि हम बहुत ज़्यादा मोटे हैं, हमें किसी भी कीमत पे हमें अपने आप को कम करना है। तो इस ऑब्सेशन को वो समझते हैं और उसी ऑब्सेशन को क्या करते हैं, उसी ऑब्सेशन को वो अपना बिजनेस बना लेते हैं। उसे पता है सामने वाला पर्सन अगर इस चीज़ से कन्विंस हो रहा है तो उसे वो फेक, मतलब एक तरह से अगर मैं बताऊँ तो अगर मैं काफ़ी अट्रैक्टिव कर दूँ कि आप 1 मंथ में अगर इस चीज़ को खाते हैं या इस चीज़ को यूज़ करते हैं तो आपका मोटापा घट जाएगा, तो क्या होगा, सामने वाला पर्सन काफ़ी अट्रैक्ट हो जाएगा उस चीज़ को लेके। तो ये जो है ये भी एक तरह का मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट होता है। इसके बाद देखिए इलिटरेसी एंड फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। अब क्या होता है, सी व्हेन द कंज्यूमर आर अनएजुकेटेड सेलर्स चीट दैम वेरी इजीली। अब यहाँ पे जो चीज़ मैंने आपको पढ़ के बताई है ये बेसिकली क्या है, देखो जब कंज्यूमर जो है अगर पढ़ा लिखा नहीं है, उसे पता नहीं है, तो सेलर क्या करता है, बहुत इजीली उसको चीट कर लेता है। ठीक है, अगर गोदरेज का जो रियल स्पेलिंग है, हम जानते हैं गोदरेज की रियल स्पेलिंग क्या है, मैंने आपको बताया था मार्केट में कई चीज़ें जो हैं आपको फेक मिलेगी। रियल कंपनी का नाम बता के आपको डुप्लीकेट कंपनी भेज दी जाएगी। गोदरेज की रियल स्पेलिंग में से एक ये जो स्पेलिंग है उसको वो क्या करेगा उसे मिसप्लेस कर देगा। सपोज मान लीजिए अदिदास है, उसने अबिदास कर दिया, फाइन। अगर वुडलैंड है तो उसने कुछ स्पेलिंग चेंज करके वुडलैंड कर दिया। तो कुछ तरह की स्पेलिंग्स अगर वो चेंज कर दे तो इससे क्या हो गया, बेसिकली उसने फॉल्स चीज़ें, गलत चीज़ें कस्टमर को बेच दी। लेकिन अगर कस्टमर को इस बात का ज्ञान हो कि प्रॉपरली किस चीज़ का लोगो क्या है, किसी के लोगो भी बदल दिए जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें जो है इसी के अंडर आती है, इलिटरेसी एंड फीलिंग ऑफ सेटिस्फैक्शन। मतलब हमें पता है, हमें इसने बता दिया आपको मैं गोदरेज का प्रोडक्ट बेच रहा हूँ, पर मुझे नहीं पता है कि सच में वो गोदरेज का प्रोडक्ट है, क्योंकि नाम तो चेंज कर दिया उसने, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें चेंज कर दी है। तो इस तरह से जो है मुझे झूठा सेटिस्फैक्शन मिल रहा है कि मैंने कोई ब्रांडेड चीज़ कर दी है। तो ये चीज़ें जो है यहाँ पे बताई गई हैं। नाउ सी हियर द सॉल्यूशन ऑफ कंज्यूमर एक्सप्लॉयटेशन। अब क्या सॉल्यूशन निकल सकते हैं इसके एक्सप्लॉयटेशन की, तो देखिए कंज्यूमर्स एजुकेशन, कंज्यूमर के पास प्रॉपर एजुकेशन होना चाहिए उस चीज़ का कि वो जो चीज़ ले रहा है, जिस चीज़ को ख़रीदने जा रहा है उसके बारे में प्रॉपरली चीज़ें बताई गई हैं। परचेज ऑफ स्टैंडर्डाइज्ड गुड, मतलब परफेक्टली जो हॉलमार्क ISI एगमार्क प्रूफ है वही सारी चीज़ें खरीदी जाएँ। टेकिंग कैश मेमो और रिसिप्ट, जब भी आप कोई चीज़ खरीद रहे हो उसका प्रॉपर रिसिप्ट या बिल लें। नॉट टू बी लूर्ड बाय एडवर्टाइजमेंट, और किसी भी एडवर्टाइजमेंट को देख के इतना अट्रैक्ट ना हो कि कोई चीज़ बिग कंपनी दिखा रही है, कोई बड़ा एक्टर उस चीज़ को यूज़ कर रहा है तो उस चीज़ें सच्ची होगी और आप जाके खरीद लें। टू कंप्लेन कलेक्टिवली, और कोई भी चीज़ें अगर आती हैं तो ऐसी चीज़ों के अगेंस्ट जाके प्रोड्यूसर के खिलाफ आप और या सेलर के खिलाफ आप कंप्लेन करें। टू वेरीफाई एन एक्सपायरी डेट, जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदें तो उसका एक्सपायरी डेट एक वेरीफाई करें कि वो सच ठीक है या नहीं। तो ये सारे पॉइंट्स जो इसके अंदर आते हैं। आई होप चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी, और जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है कंज्यूमर्स मूवमेंट, ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू फॉर द डे।